Hello everyone, welcome to all of you. So in this video we will have a discussion on the questions of engineering mathematics which has been asked in the CS Shift 2 paper of 8th February. Alright, let's have a discussion. So dear students, we are having the very first question which is talking about for the given system of equation ax plus y equals to b, 16x plus ay equals to 24. Suppose a and b are chosen such that system of linear equation has multiple solution, then the product of a and b we need to find out. Already this pattern of question we had a discussion n number of times. ऐसे क्वेश्चंस हमने हमारी क्लासरूम में भी डिस्कस किए हैं. We had a discussion on these type of questions even okay in our complete one shot revision also. तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वन शॉट रिवीजन देखा होगा आई एम श्योर वो बच्चे इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अंडरस्टैंड इट्स टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो बेटा पहले यहाँ लिख लो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब ax is equals to b वाला है. If you will go here with the ab, so let's write down here the ab and then I will tell you one shortcut. Within the two step you can solve this question. मतलब दो ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. We are having here ax, so I will write down a1 and b. Next is nothing but 16a and 24. ठीक है. So you can see this is nothing but your 2 cross 3 matrix जो कि क्या है augmented matrix है. Now we know very well it is given to us कि for this system of equation we are having infinitely many solution. Now do you know about the infinitely many solution? मैम infinitely many solution का मतलब होता है given matrix में A और AB की रैंक तो सेम है but it is less than 2 number of unknowns. Are you getting my point? Number of unknowns का मतलब होता है number of variables. When you are checking here you are having here x and y 2 variables only. तो यहाँ से clear cut टू स्टेप आगे हमारा स्टूडेंट सॉल्व करेगा. क्लियर कट वी कैन सी कि मैम इन दिस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए और ए बी की रैंक क्या होगी लेस देन 2 होगी. वाई लेस देन 2? बिकॉज यू आर हैविंग हियर नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. सो ए और ए बी दोनों की रैंक लेस देन 2 होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग मैम व्हेन वी आर हैविंग ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ए और ए बी दोनों की रैंक लेस देन 2 है, इसका मतलब इस 2 क्रॉस 3 में जितने भी 2 क्रॉस 2 के माइनर है सबकी वैल्यू 0 होगी. इंस्टेंटली यू कैन सॉल्व दिस वन. तो हियर वी कैन राइट डाउन इन दिस कंडीशन इट इज ए एंड ए बी की जो रैंक है वो क्या होगी लेस देन 2 होगी. और जब ये लेस देन 2 है तो उसका मतलब क्या हुआ लेस देन 2 का मतलब मैम 2 क्रॉस 2 के सारे माइनर 0 है. देन यू आर पुटिंग द वेरी फर्स्ट माइनर ऑफ दिस 2 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 0. जब आप इस पहले माइनर को 2 क्रॉस 2 के माइनर को 0 के इक्वल रखोगे विच इज a इनटू विच इज a1 16 और a की वैल्यू ये 0 के इक्वल. यू आर गेटिंग a स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0. यहां से मिल रहा है a की वैल्यू प्लस और माइनस 4. ऑलराइट. Now when I will go with the second minor, first minor 0 है तो second minor भी 0 होगा surely. इस 2 cross 2 के minor को भी 0 के equal put करेंगे. When we are putting this second minor equals to 0, this is giving you nothing but 24 minus AB equals to 0. And basically आपसे question में product of AB पूछा था तो आप यहाँ से बता ही सकते थे. Without finding the value of a and b, I can solve the product of a b is nothing but 24. मुझे ये बात यहाँ से समझ में आ गई थी. But still any student wants to go कि नहीं मैम मुझे तो आप a और b की वैल्यू बताओ. तो you can see the value of a is +4. जब आप यहाँ +4 रखोगे तो b will be +6. When you will put here -4 तो b will be -6. तो ultimately a into b is nothing but 24 only. Are you getting my point? Question कितना आसान है. You can understand this one. So it's asking about the product of a and b which we can approach exactly here nothing but 24. If this is NAT तो भी 24 options है तब भी 24. Very easily we can solve in both the cases. It's asking about the product of AB. अब A और B की वैल्यू कुछ भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. If you are finding from here the value, A की वैल्यू रखोगे B की वैल्यू आ जाएगी प्लस और -6. ठीक है. तो जब आप अल्टीमेटली AB के प्रोडक्ट पे जाओगे तो तब भी ये आपको कितना मिल रहा है 24 मिल रहा है. ऑलराइट. ठीक है. लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. It's talking about we are having a function. What the function we are having? Let's check it out. We are having a function, dear students. In this case, what is the function? This function is talking about. इसको थोड़ा और highlight कर लिया जाए. Let's go with this one. So we are having a function. ठीक है, दिख रहा है. इसको हटाना हो तो भी हटा सकते. तो fx equals to 1/3 root of 2 pi exponential e power exponential minus x square by 18 where x belongs to minus infinity to infinity.
we need to find out which of the following is true of the given random variable. कौन सा ऑप्शन ट्रू है? The first option it is talking about x is a Poisson random variable, हो ही नहीं सकता. Poisson random variable में होता है discrete Poisson क्या है? Poisson और binomial both are the discrete continuous random variable. तो discrete की बात हो ही नहीं रही मैम. यहाँ तो आप किस पे जा रहे हो? किस पे जा रहे हो आप? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, राइट? सो दिस इज नथिंग बट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. सो मैम डिस्क्रीट तो है ही नहीं, ये तो ऑप्शन आपने हटा दिया. सेकंड इट इज टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल. इट कैन बी यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल कब होता? अगर यहाँ 1/b माइनस ए इसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता. बट हियर द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन टू यू e टू द पावर माइनस x स्क्वायर बाय 18 1/3√2π. तो ये भी नहीं है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल. एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो लैम्डा e पावर माइनस लैम्डा x वाला फॉर्म होता है. सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. सो दिस इज क्लियरली नथिंग बट योर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल. ये क्या है? सिंपल आपका नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है. इन द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल वी यूज्ड टू राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो वी नो वेरी वेल कि इन द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज नथिंग बट 1/सिग्मा रूट ऑफ 2π और e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर. सो वी कैन अप्रोच लाइक दिस. ठीक है. सो we can go with this one. यहाँ से जो क्लियर दिख रहा है आपको वैल्यू कितनी आ रही है? This is nothing but मैम normal random variable. So answer should be the simply normal random variable. ठीक है? Alright. चलिए let's come to this question which is again a very simple question और straight forward question. ऐसे बहुत सारे basic examples हम discuss करते हैं. So the determinant of a 4x4 matrix is 3. It is talking about you are having a 4x4 matrix and the determinant of this 4x4 matrix is nothing but 3. And you need to find out the determinant of 2a. When we are looking for the determinant of 2a, ठीक है? As we know very well बेटा कि whenever we are finding the determinant, ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. Determinant of 2a. तो when you are taking 2 outside from this the determinant, तो always it will come with 2 power n, है ना? The order पे डिपेंड करेगा. So it will be 2 power n into determinant of a. What is n? N is 4 only. So 2 power 4 into determinant of a. Determinant of a you are having already 3. So it is 2 power 4 into 3. So we can sorry we can write down the result. It is nothing but 16 into 3 sorry 16 into 3 is nothing but ma'am the result should be 48. So I can go with the result will be nothing but 48 only. ठीक है? Simply we can solve it. Let's come to the next question which is again as these questions we are solving are the memory based questions only. Whatever the questions I received till now from the students I am making those those questions as a solution here. Okay, maybe the questions can be little bit changed in the actual gate paper, but the student whoever remembered this one they send me and they means I'm just solving these questions. So the remaining questions if they are having more questions, so the remaining questions we will make once the response sheet will be okay officially declared by the IIT. ठीक है? तो अब हम डिस्कस करेंगे जब ऑफिशियल हमारे पास गेट 2026 की रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी तब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस जो भी हमारे पास है वी विल हैव अ डिस्कशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन व्हिच इज द क्वेश्चन फ्रॉम द कैलकुलस एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन इज MSQ. ठीक है? ये क्वेश्चन आई थिंक MSQ है. लेट्स सी. It is given to us the value I equals to integration minus 1 to 1 3x square minus ax plus 1 dx. Then which of the following is or are true? It's talking about first I is independent of a, second I is dependent of a, third I is less than to 0 when the a belongs to minus infinity to infinity and I greater than 0 where a belongs to minus infinity to infinity. ठीक है? So first of all we can see better this is a question of integration. So I equals to integration minus 1 to 1. क्या दिया है रेंज? minus 1 to 1 3x square minus ax plus 1 dx. We know very well we had a discussion this n number of times ki whenever we are having the integration minus a to a fx dx we should not approach directly the integration. We should check always whether the function is an even function or an odd function, है ना? आपको हमेशा ये बात चेक करनी होती है. So when you are checking it, suppose I will open it just like this minus 1 to 1 3x square dx minus a x, ठीक है, 1 to 1 dx or plus 1 dx minus 1 to 1. I will go here with separate. When I will separate it, so I can see clearly 3x square. This is nothing but an even function. ठीक है? ax this is nothing but your odd function. और यहाँ पे भी x power 0 है. x power 0 का मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया? even function. So whenever we are having even function, the result is twice 0 to a fx dx. और odd function होगा तो integration 0 बन जाएगा. तो ये result तो खत्म.
we are having these two only. When I will go with this one, so it is giving me 2 into 0 to 1 3x square dx. और अगर आप उसको भी solve करोगे तो 2 into 0 to 1 1 dx. When I will go with this one 2 as it is 3 integration कर दो x cube by 3. Limit आ रही है 0 से 1 and this will be 2 integration is x only. Limit आ रही है 0 से 1. When we will go with this one limit आप put करोगे तो 2 यहाँ से रहा और ये वापस 2. It is giving you the result 4. If they will ask you कि बताओ इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है तो हम यहाँ बता देते इंटीग्रेशन की वैल्यू 4 आ रही है. But the most important thing, they are not asking the value. They are asking about what? The I is independent of A. Yes, I is independent of A. Because when we are solving the value, there is no I. जब आप इस I को solve कर रहे हो after integration, there is no A remains here. So surely your I is independent to the A. आपका जो I है वो A से independent है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. Dependent खत्म हो गया. Now I की value less than 0 या greater than 0. We are getting here I as in 4. So I value we are getting here greater than 0. When it is greater than 0 तो A की value कुछ भी हो minus infinity से infinity में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. Are you getting my point? Because in this case your A is not existing. So yes, the result, these two, if this is an MSQ, then these two results should be correct. A and a D option means I'm not saying about these options. Options can be shuffled, but ये और ये statement correct है जहाँ independent I will be independent of A and the value of I is greater than 0. ठीक है, since we are getting here the value as in 4. I hope it is clear to everyone. Again, I'm repeating as these questions are nothing but memory-based questions. So whatever the data I'm getting from the students, I'm making the questions like this only. ठीक है. Now we are having one more very good question from the probability. Okay, and these 5 questions I'm having till now from the CS Shift 2 paper. Let's have a discussion. The question is talking about a coin is tossed. Okay, how many times? 6 times. And consider 2 events. First event E1. At least 2 head in the tosses. Second, fourth, and sixth. Event E2. Number of heads is equals to number of tails in the tosses. First, second, third, and fifth. Okay, and we need to find out here probability of E1 given E2. Since we can understand this is a question of conditional probability बेटा, ये बात समझ में आ रही कि क्वेश्चन conditional probability का है, but यहाँ पे total number of outcome if you will take, you will go here with the 2 power 6, but since here we are having two things in this conditional probability, we are having the probability of E1 when E2 is given to you. So E2 already happened. Okay, this is a different question from the normal questions of the conditional. Different क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास intersection वाला कोई scene नहीं है. You don't have all those things here. So how you need to approach? You need to go here with the simply. You need to go even without since all the events are independent to each other. सारे के सारे events क्या है? Independent to each other है. Because we know very well whenever we are tossing any coin, तो every toss is independent. तो E1 और E2 event भी क्या होंगे? सारे के सारे events यहाँ independent है. So how I will proceed? I will go here with first of all, okay, I will find out the total favorable number of outcomes for the E2. Then I will find out the favorable number of the favorable cases for the E1. और फिर हम उसको approach करेंगे. So let's see how we can solve. When we are going with this one, first of all, let's talk about the event E2. तो पहले बात करते हैं possible cases for the event E2. ठीक है, जो कि बन सकते हैं event E2 के लिए. Now please try to understand my point here. When I'm going with this one, possible cases for the event E2, क्या क्या possible cases आपके पास हो सकते हैं? We can even write down here. ठीक है, what it can be, because we are having here in the event E2 what you are asking number of heads always equals to number of tails, and you are talking about 1 2 3 5 toss. Which one? Toss number 1, toss number 2, toss number 3, toss number 5. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो भी आएगा वो हेड एंड टेल आ जाएगा, तो उसको थोड़ा और अच्छे से बनाया जा सकता है. We can do like this one. It's talking about क्या? Toss, first toss, second toss, थर्ड टॉस एंड फिफ्थ टॉस. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ. व्हाट कंडीशन वी आर हैविंग हियर? नंबर ऑफ हेड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेल्स. नंबर ऑफ हेड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेल्स, एंड अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन ओनली. ठीक है, अब आप मेरी बात को आराम से समझना. नंबर ऑफ हेड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेल्स वी आर हैविंग. व्हाट आर द पॉसिबिलिटी वी कैन मेक हियर? क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है जब नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स सेम हो? मैम व्हेन यू आर थ्रोइंग, ठीक है, यहाँ पे कितने टॉसेस है? राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 4 टॉसेस ओनली, एंड यू वांट इन दीज 4 टॉसेस नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स बराबर बराबर हो. इसका मतलब कोई भी 2 टॉस पे आपके पास हेड आए और दो टॉस पे टेल आए. राइट, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी.
तो although I can solve this question directly also using the combination, but यहाँ हम I will tell you this one, then combination की भी बात कर लेंगे. तो how I will start from here. Simply I will go with, ठीक है, I will go with these cases. या चलो डायरेक्ट बनाते हैं. क्या हो सकता है मैम, फर्स्ट वाले टॉस पे हेड आ जाए, ठीक है, सेकंड पे भी हेड आ जाए, थर्ड और फिफ्थ पे क्या आ जाए, टेल आ जाए. हेड इक्वल इक्वल हो गया नंबर ऑफ टॉसेस. ओके, वी कैन हैव द पॉसिबिलिटी कि मैम इन दोनों पे टेल आ जाए और इन दोनों पे हेड आ जाए. यस, ये भी पॉसिबल है. वी कैन हैव दिस पॉसिबिलिटी. आई थिंक मुझे थोड़ा और ऊपर शिफ्ट करना होगा बिकॉज द नंबर ऑफ केसेस विल बी मोर हियर. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ हम शिफ्ट कर लेते हैं. सो वी कैन स्टार्ट विद हेड ऑन बोथ एंड देन टेल ऑन दिस वन. वी कैन गो आफ्टर दैट, क्या टेल दोनों पे आ जाए और फिर दोनों पे हेड आ जाए. ठीक है मैम, ये भी तो हो सकता है कि दोनों पे टेल और यहाँ पे मिडिल में हेड आ जाए. यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि दोनों पे हेड और यहाँ पे मिडिल में टेल आ जाए. दिस इज पॉसिबल कि हेड टेल हो जाए. ये भी पॉसिबल है कि टेल हेड हो जाए. 1 2 3 4 5 6, these 6 cases are possible only. Are you getting my point? These 6 possibilities are there when you are tossing. ठीक है, tossing coins जहां पे number of heads और number of tails बराबर बराबर आए and you are tossing coins 4 times. All right, so here I can write down here the possible cases. ठीक है, try to understand my point. Total possible cases are 6. तो ये रहे. Then we are throwing a coin 6 number of time. हम एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं 6 number of time. आपने बात कर लिया कि फर्स्ट टॉस पे क्या क्या आ सकता है, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ की भी बात कर ली. सो फॉर दीज 1 2 3 5 वी आर हैविंग दीज 6 केसेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर दीज 1 2 3 5 वी आर हैविंग 6 केसेस. बट मैम अभी भी कुछ 2 टॉस तो बाकी है. विच टॉसेस आर लेफ्ट? मैम स्टिल वी आर हैविंग हियर 2 टॉसेस. कौन सा? टॉस नंबर 4 और टॉस नंबर 6. अब टॉस नंबर 4 और 6 पे मैम 4 पे कुछ भी आ सकता है. दोनों पे हेड आ जाए तो भी चलेगा, दोनों पे टेल आ जाए तो भी चलेगा, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे टेल एक पे हेड आए तो भी चलेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज सिंपली व्हेन वी आर टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2 into power 2, राइट. तो टोटल पॉसिबल आउटकम इन दोनों कॉइन्स पे कितने होंगे? दैट विल बी 4 ओनली. तो 6 into 4 24. दीज 24 केसेस वी आर हैविंग हियर फॉर व्हाट? These 24 cases we are having here for when the number of heads equals to number of tails. This is for the E2 event. बात समझ में आ गई? E2 event तक की सभी को. ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम आपने ये तो किया, ठीक है, क्या हम इसको से कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं? यस, यू कैन गो विद द कॉम्बिनेशन. अगर कोई बच्चा कॉम्बिनेशन से करना चाहे तो यू कैन सी यू आर हैविंग हियर 1 2 3 and 5. आपके पास ये 4 टॉसेस हैं. और ठीक है, और 4 टॉसेस में से अगर आप सॉल्व कर लोगे, आपको बोला है नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स आने चाहिए सेम. तो 2 हेड और 2 टेल आपको चाहिए. तो यू कैन सी द रिपीटेशन इज देयर. तो हाउ आई विल गो हियर. मेरे पास में यहाँ टॉसेस आ रहे हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 हेड आपके पास सेम है तो यू कैन डिवाइड बाय 2 एंड देन अगेन यू कैन डिवाइड बाय 2. आर यू गेटिंग? तो अगर कोई बच्चा, ऑल्दो दिस बेसिक थिंग, बेसिक्स पे जा सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज एवरी टाइम द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बट स्टिल एनी स्टूडेंट वांट्स टू गो फॉर दिस इवेंट E2, आई एम टेलिंग यू दिस अप्रोच आल्सो. तो अगर कोई बच्चा यहाँ से जाएगा तो मैम 4 फैक्टोरियल मतलब 4 into 3 into 2 रहा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 into 2. ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, यहाँ पे मेरे पास 6 आ रहा है. एंड दीज आर द 6 केसेस फॉर द 1 2 3 5. रिमेनिंग 2 जो टॉसेस आपके पास है 4th और 6th, उस पे फिर से वही आपके पास क्या आ जाएगा? 4 पॉसिबिलिटी. तो 6 into 4 24. तो इस कंडीशन में भी आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी? 24 आएंगी. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. सो यहां तक की बात सभी को समझ में है. वी आर हैविंग हियर 2 केसेस. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट 2 इवेंट्स. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट E2. Now let's come to the event E1. Event E1 is talking about at least 2 head in the tosses 2nd, 4th and 6th. When you are going with the tosses number 2nd, 4th and 6th, आपके पास at least 2 heads आए. ठीक है, now we can understand this thing simply बेटा here कि यहाँ पे जो conditions हैं उसमें E2 event already हो गया है and from that E2 event okay we are looking कि अब E1 हो तो उसके क्या chances रहेंगे. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, so when I will go here for the possible cases for the event E1. ठीक है, अब बात करते हैं event E1 के लिए. तो पॉसिबल केसेस फॉर द इवेंट E1. अब क्या बनेंगे ये भी बहुत आराम से समझें, देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. आई विल मेक हियर द 2 पार्ट्स. फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन आई एम गोइंग हियर विद द केस नंबर 1. अच्छा एक काम करते हैं, इससे भी पहले यहां लिख लेते हैं पॉसिबल केसेस. ठीक है, देन आई विल फ्रीज पॉसिबल केसेस फॉर इवेंट E1.
ठीक है। इवेंट E1 में आपको कौन कौन से टॉसेस चाहिए? यू आर लुकिंग फॉर द नंबर ऑफ टॉसेस हियर एज एन 2, 4 and 6, ठीक है। सो 2, 4 मतलब सेकेंड टॉस, फोर्थ टॉस और फिफ्थ टॉस, ठीक है। इवन आई कैन मेक अ स्मॉल टेबल ऑल्सो हियर। सो सेकेंड टॉस, फोर्थ टॉस और फिफ्थ टॉस, ठीक है। अब मेरी बात आराम से सुनना। सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ टॉस वी आर लुकिंग फॉर एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स की बात कर रहा है। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब मैम ये हो सकता है कि यहाँ हेड आ जाए, यहाँ हेड आ जाए और यहाँ पे टेल आ जाए। दिस इज पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल टू हैव, ठीक है। एटलीस्ट 2 बोल रहा है तो 2 हेड्स भी आ सकते हैं, ऑल द 3 कैन बी ऑल्सो हेड्स, ठीक है। सो आई कैन गो विद दिस वन, हेड्स, हेड्स और हेड्स, ये कंडीशन भी आपके पास सॉरी पॉसिबल है, ठीक है। बट आई एम गोइंग विद दिस वन मैम। इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। सो फॉर द सेकेंड टॉस, फोर्थ टॉस और फिफ्थ टॉस, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। इट इज पॉसिबल टू हैव 2 हेड्स और 1 टेल। पहले इसकी पोजीशन चेंज कर लो, तो हेड टेल हेड। इट इज पॉसिबल टू हैव टेल हेड हेड, और या फिर तीनों के तीनों आपके पास क्या आ जाए, हेड आ जाए। सो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटी वी आर हैविंग, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है, बिकॉज नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द E2 ऑल्सो। आप E2 से भी थोड़ा सा कनेक्ट करके चलना होगा। सो आई एम राइटिंग हियर टोटल पॉसिबिलिटी। अभी तक यहाँ पे जो मुझे दिख रही है वो ये 4 केसेस दिख रहे हैं, ठीक है मैम। नाउ हाउ वी नीड टू प्रोसीड आफ्टर दैट आप समझिएगा। नाउ इन दिस केस इफ आई विल गो हियर विद द टॉस नंबर जो 2 आपके पास आ रहा है, since toss 2 is there in this event E1 and toss 2 is there in the event E2 also, तो आप एक मतलब you can take any example, you can go with the 4 also, you can go with the 6 also, ठीक है। आप किसी पे भी जा सकते हो, आप 5 पे भी जा सकते हो, but since we need to go with those number जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, which is there in the event E1 as well as in the event E2। तो event E1 हमारे पास आ रहा है सेकेंड टॉस, और यहाँ पे भी सेकेंड टॉस आ रहा है, ठीक है। तो I will try to fix, क्योंकि मुझे एटलीस्ट का कंडीशन पता करना है ना। तो what I will do, I will fix here, I will start from the second toss। तो मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे जो फर्स्ट केस मैंने लिया है, when I'm fixing on the second toss पे मैंने क्या मुझे बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड चाहिए ना, तो सेकेंड टॉस पे मैंने 1 हेड को फिक्स कर दिया। आई एम फिक्सिंग हियर ऑन द सेकेंड टॉस 1 हेड, ठीक है। बात समझ में? सेकंड टॉस पे मैंने 1 हेड को फिक्स कर दिया। अब जब आपने सेकंड टॉस पे 1 हेड को फिक्स कर दिया, दिस इज द केस, आपने एक हेड को फिक्स कर दिया। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मैम? व्हेन वी आर फिक्सिंग ऑन द सेकंड टॉस हेड, तो ये हो सकता है कि हेड टेल आए, ठीक है। जब आपने यहां फिक्स कर दिया, ये हो सकता है कि टेल हेड आए। ये 2 ही केसेस आपके पास बन सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है मैम, एक और बन जाएगा, ये भी तो आ सकता है। हाँ राइट, वी कैन हैव दीज 3 केसेस। व्हेन यू आर फिक्सिंग ऑन द सेकंड टॉस पे जब आपने फिक्स कर दिया कि हेड ही आए, तो आपके पास ये यहाँ पे एक कंडीशन ये हुई, सेकंड कंडीशन ये और थर्ड कंडीशन ये। तो वी कैन हैव हियर दीज 3 केसेस। आर यू राइटिंग? ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द पॉसिबल केसेस? यहाँ पे इस कंडीशन में तो हुए 3, but again ma'am we are talking about only here second and fourth and fifth tosses. What about the remaining tosses? Remaining tosses आपके पास अभी भी है, फर्स्ट है, ठीक है, थर्ड है और सिक्स्थ है। तो उनका क्या सीन रहेगा? Now I am talking about those which, हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसमें हमने सेकेंड टॉस पे हेड को फिक्स कर रखा है। Look at here, come to this point. सेकेंड टॉस पे मैंने हेड को फिक्स कर रखा है, सेकेंड टॉस पे मैंने हेड को फिक्स कर रखा है, सेकेंड टॉस पे मैंने हेड को फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो व्हेन आई एम फिक्सिंग सेकेंड टॉस हेड, तो अब रिमेनिंग फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पे क्या आ सकता है, उसके लिए आप इस पे जा सकते हो। इसीलिए मैंने इस मेथड को फॉलो किया। ओके, तो मैम इस पे आ सकता है आपके पास ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी 2 हेड के लिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड के लिए, और ये भी आ सकता है। ओके, और मैम ये वाली कंडीशन भी बन सकती है। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन, आपको दिख रहा है कि एक हेड आपके पास ऑलरेडी और एक हेड और यहाँ आ गया, ठीक है। तो 2 हेड आपके पास आ रहे हैं और एटलीस्ट 2 तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस केस में भी आपके पास एटलीस्ट 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और इस केस में भी आपके पास एटलीस्ट 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और इसमें तो चल ही रहा था हमारे पास ऑलरेडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब कंडीशन ओवरऑल सब जगह सेटिस्फाई होगी व्हेन यू आर गोइंग विद दिस वन। ये मैंने आपको सिंपली बता दिया। व्हेन यू आर फिक्सिंग इट, उसने कहा था कि सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पे एटलीस्ट 2 हेड आए, तो 1, 3 और 5 पे भी अगर हेड आ जाए तो दिक्कत नहीं है, हेड नहीं आएगा तो भी चलेगा। Okay, so I hope you can understand my point. So in this case we can have, when we are fixing head on this one, we can have these 3 cases. So I am writing when I fixed, okay, second toss पे मैंने head fix कर दिया, तो 3 into 3 मेरे पास total number of cases इसके लिए कितने बन गए? 9 बन गए। किस फर्स्ट कंडीशन में? when I fixed
ठीक है, व्हेन आई फिक्स द हेड ऑन द सेकंड टॉस, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कहा कि मैम इस बार ना एक काम करते हैं, ये जो सेकंड वाला टॉस है इस पे आप टेल को फिक्स कर दो, ठीक है, फिक्स कर दो किसको, टेल को। व्हेन वी आर फिक्सिंग टेल्स हियर, तो व्हेन वी आर फिक्सिंग टेल्स हियर, लुक एट हियर, अब ये वाली कंडीशन तो हट जाएगी, टेल को फिक्स कर रहे हो, लेट्स यूज द डिफरेंट कलर, ठीक है, डिफरेंट कलर। मैम टेल्स को फिक्स कर रहे हो तो बस ये एक ही ऐसी कंडीशन बन रही है। Among the possible cases for this event E1, we are having only one condition when we are fixing tails and it is giving you two heads. At least 2 की बात कर रहा था, 2 आएंगे तो भी चलेगा, 3 आएंगे तो भी चलेगा, 2 से कम नहीं होने चाहिए। So here when you are fixing this one, तो only one condition is there. Can you see? Only one case is there. Yes ma'am. So यहाँ से क्या बन जाएगा, only one case is there, possible one case. Now this is फॉर द टॉसेस कौन से, जब आप सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ की बात कर रहे हो, आपने टॉस तो 6 बार किया है ना, तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग केसेस, रिमेनिंग में 1, 3, 5 में इस बार आपने क्या फिक्स किया, दिस टाइम यू आर फिक्सिंग हियर, लेट्स यूज द व्हाइट, यू आर फिक्सिंग टेल्स हियर, तो टेल्स यहां फिक्स किया था, ये रहा टेल्स, सॉरी आई नीड टू गो विद दिस वन, सेकंड टॉस, ये रहा टेल्स, ये रहा टेल्स और ये रहा टेल्स, है ना। इन द सेकंड टॉस आई एम फिक्सिंग टेल्स, तो सेकंड टॉस पे टेल फिक्स किया, तो एक केस ये बन सकता है पूरा का पूरा, सेकंड केस ये बन सकता है और थर्ड केस ये बन सकता है। तो व्हेन यू आर फिक्सिंग टेल्स ऑन द सेकंड टॉस, तो 1, 3, 5 टॉसेस में ये जो रिमेनिंग है उसमें आपके पास 3 केसेस बन सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट शुड बी अगेन 3 हियर, तो 1 into 3, यहाँ पे टोटल पॉसिबल वेज कितने बन गए 3, और यहाँ इस केस 1 में टोटल पॉसिबल केसेस बने 9। व्हेन वी विल गो हियर विद द टोटल पॉसिबल केसेस ऑफ इवेंट E1, ठीक है, टोटल पॉसिबल केसेस फॉर द इवेंट E1, इट शुड बी 9 + 3 विच इज 12 ओनली। अब आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी वी कैन राइट डाउन डायरेक्टली नाउ, तो क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी which we need to find out for E1 given E2, ये कितनी बन जाएगी, E1 के लिए फेवरेबल आउटकम्स 12 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम इस बार 24 लिए जाएंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेकिंग टोटल नंबर ऑफ आउटकम 24, बिकॉज वी आर हैविंग हियर 2 केसेस, E1 और E2 है, तो E2 यूजुअली हम कितना लेते हैं, 2 की पावर 6 लेते हैं, बट हियर इन दिस केस आई शुड गो हियर विद द 24 केसेस। क्यों? क्योंकि जब आप कंडीशनल की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हियर द केस E2 ओनली, तो वी कैन रिड्यूस द केसेस, द टोटल नंबर ऑफ केसेस 64 से रिड्यूस, सॉरी 2 पावर 6 से रिड्यूस होकर हम कहां ले सकते हैं, 24 में ले सकते हैं, ठीक है। सो आर यू आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट व्हिच इज नथिंग बट 24। तो पॉसिबल केसेस टोटल कितने हो गए, 24 हो गए, फेवरेबल आउटकम 12 हो गया, तो रिजल्ट आ रहा है 1/2 या फिर 0.5, वॉट एवर द ऑप्शन इज अवेलेबल। अगर ऑप्शन है तो 1/2 और 0.5 में से जो भी आ रहा है, यू कैन गो विद द क्वेश्चन। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, दिस इज श्योरली अ गुड क्वेश्चन। इफ द लैंग्वेज लाइक दिस, वी कैन अप्रोच द क्वेश्चन इन अ मल्टीपल, ठीक है, विद द मल्टीपल स्टेप्स, इट्स नॉट ओनली इन द सिंगल स्टेप, बट हाँ आपको 2 केसेस कंसीडर करने होंगे। फर्स्ट यू शुड गो विद द E2 एंड देन ओके, E2 के लिए टोटल 24 केसेस बन रहे हैं, देन आफ्टर वी आर हैविंग द इवेंट E1, एंड इवेंट E1 में आप फिक्स कर सकते हो 2 पे हेड आई या फिर 2 पे टेल आई। अगेन द क्वेश्चन अराइज कि मैम 2 ही क्यों फिक्स किया, इफ यू विल गो विद द 4, अगर आप 4 को फिक्स करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, मैम इस कंडीशन में तो 4 फिक्स था ही नहीं, तो अगर 4 फिक्स करते हो तो 4 फिर आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो। तो बेटर फॉर नॉट अवॉइडिंग ओके दीज टाइप ऑफ केसेस, यू शुड गो डायरेक्टली विद दैट नंबर जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है, E1 और E2 दोनों में आ रहा है, यू शुड गो विद दैट वन विच विल वर्क एज एन इंटरसेक्शन ओनली। I hope you can understand my point. So which will work here as an intersection only. So we should go with the intersection only. So 2 is there, which is in both of the cases. Okay. So the result should be 12/24. I hope it is clear to everyone. Thank you.